اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، تمہارے ہر جائز حاجات کو پورا کرے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، اور تمہیں دین جو بھی آپ کی کلاسز میں تمہاری مدد کرتے، تمہارے شوہر ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھی، اللہ ان تمام کو بھی خوش رکھے، ان کو بھی دین دنیا کی دولت نصیب کرے۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی قریب ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر جو بھی دعائیں مانگیں گے، یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری توبہ کو قبول کرنا۔ توبہ کی مہلت صرف اس وقت تک ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ آج سے عہد کر لیں گے کہ خود بھی سچی توبہ کرنی ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ ہر اس کام سے فوراً دور ہونے کی کوشش کریں گے جس میں اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہے۔ توبہ کریں، رو رو کے اللہ سے معافی مانگیں، ورنہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ضائع ہو جائے گی۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور عہد کریں گے کہ مرتے دم تک اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ نفس اور شیطان سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، خود اور دوسروں کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے ہمیں دینے والوں میں شمار کیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں گے۔ بے شک قیامت کے انسان کو حسرت ہوگی کہ اسے تھوڑی مہلت دی جائے دنیا میں جانے کی اور وہ صدقہ ادا کرے۔ گناہ صرف دل کو سیاہ نہیں کرتے بلکہ زندگی کے سارے معاملات کو بھی بگاڑ دیا کرتے۔ وقت ہے توبہ کر لو۔ ہم یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں، عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ ہم یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں، نفس کی خواہشات پورے کرنے کے لیے نہیں۔ ہم یہاں چند ساعتوں کی زندگی گزارنے آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اپنے مقصد حیات پر پوری توجہ دیں، ورنہ یہ دنیا تو مشکل ہوگی ہی ہوگی، وہ جہاں بھی مشکل بن جائے گی۔ ہمارے لیے اس کا اختتام ہے مگر اس جہاں کا کوئی ہمارے لیے اس کا اختتام ہے مگر اس جہاں کا کوئی اختتام نہیں۔ الحمدللہ۔ یا اللہ ہم لوگ کو اچھی توفیق دے، ہم لوگ کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اگر اللہ تعالی ہماری دعا ابھی ہوا الحمد اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی، لمبی عمر اور ڈھیروں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ ہر صبح دعا دینا فطرت ہے میری، ہر صبح دعا دینا فطرت ہے میری، ہر ایک کو خوش دیکھنا حسرت ہے میری۔ میں کسی کو یاد آؤں یا نہ آؤں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا عادت ہے میری۔ الحمدللہ۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے، انشاءاللہ۔ اللہ آپ تمام کو صحت تندرستی عطا فرمائے، دونوں جہاں میں سرخرو کرے۔ اللہ ہمیں ہمت و استقامت دے، ہمیں دین کا داعی بنا دے، ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو اور ہمارے اولاد کو دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، اور ہمیں دین کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ اس دل پر رحم فرما جس کا درد تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ اس دل پر رحم فرما جس کا درد تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو، کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی یار دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ الحمدللہ۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر یعنی درخت کے سائے دار نہیں ہوتا، لہذا توقعات ایک حد تک رکھا کرے، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ہو جاتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلق کا سر قلم کرتی۔ اللہ تعالیٰ کو غصے کے بجائے رحمی سے کام لینا بہت پسند، اس لیے ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خوش کرنے کے لیے سب کے ساتھ صلح رحمی کریں گے، عطا رحمی نہیں کریں گے، سب کو درگزر کریں گے۔ کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم
درگزر کر دے. آمین. تم صرف اللہ سے مانگو، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی غفور رحیم ہے. وہ ضرور یقین کے ساتھ تمہیں دے گا. اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اس لیے جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرو. اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ آپ سب پر صاحبان کی طرح چھایا رہے. آمین. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالی ہماری تمام نیک حاجات کو پوری کرے اور ہمیں صحت مند زندگی، تندرست زندگی عطا فرمائے. کہ اللہ اپنے سوا کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کر، تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہم پر سب پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھ، ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کر اور ہماری مدد فرما. اپنے غیب کے خزانے سے رزق حلال عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے وسیع رزق عطا فرما. آمین. جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرمائے گا. الحمدللہ. اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں، تو 99 حصے کی حقدار ماں ہے. ماں ہی ایک ایسی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اسے کبھی مت دکھی کرو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. الحمدللہ. والدین کی خدمت کرو، ان سے پیار کرو، ان کے زندگی میں ہی ان کی قدر کرو اور ان کی دعا لو. نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی. یاد رکھو قبر میں صرف عبادت کام آئے گی. اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے. ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو دین دنیا کی دولت عطا کرے. دین کے احکامات پر پابندی سے چلنے کی توفیق دے. مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے لاڑ کرو، جیسا بچہ ماں سے لاڑ پیار کرتا ہے اور اپنی کوئی بھی چیز جو اس کو چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. اسی طرح ہم کیا کریں گے، اللہ سے بھی لاڈ و پیار کریں گے، اللہ کو منائیں گے، انشاءاللہ وہ ہم کو معاف کر دے گا اور ہمیں ضرور درگزر کرے گا. مایوسی اور نا امیدی نہ ہو. نا امیدی کفر ہے. اللہ پر یقین کرو. اللہ ہمیں ہدایت دے، اچھی توفیق دے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، دین کے راستے پر تمام کو چلنے کی توفیق دے. ہمیں حسد، جلن اور بغض سے دور فرما. کاروبار میں جس نے بھی ترقی کے لیے کہا تھا، جو نہیں بھی کیا تھا، اللہ ان تمام کے کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا فرما اور ہمیں حسد، جلن اور بغض سے محفوظ رکھ اور ہم کاروبار میں ترقی دے اور خرچ کے بوجھ سے بھی ہلکا کر دے. یا اللہ ہمیں تمام جو بھی مرحومین ہیں، اللہ ان تمام کو جنت الفردوس کے مقام پر ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے. ہمارے نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما. یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. یا اللہ جو بھی ٹوٹی پوٹی زبان میں جو بھی ہم نے دعائیں مانگی، یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. اور یا اللہ انشاءاللہ بس اسی امید پر میں دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے. اور جو بھی بچے ہیں اللہ نہ کرے، جو آئے ہیں جو نہیں بھی آئے ہیں، اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کبھی کچھ تکلیف ہو تو اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کرے، ان کو راحت نصیب کرے. ان کے گھر میں اجالا ہی اجالا برسا دے. اور اللہ نہ کرے کبھی بیمار ہو تو اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ تیرے سوا ہم کسی سے نہیں مانگتے. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں. تو کیا کریں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے. اللہ کہتا ہے تو میری طرف 1 قدم بڑھو، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، غیروں سے مدد لینے کے بجائے اللہ سے دعا کریں گے. فجر کا ٹائم اور سب سے اچھا ٹائم تہجد کا ہوتا ہے. بچوں ہم اللہ سے بات کریں گے. اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے ہم بات کریں، اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے. تو انشاءاللہ ہماری جو بھی جائز حاجات ہے اس کو بتائیں گے اللہ کو. اللہ کا کیا ہے بچوں، ہماری دعا زبان پر آنے سے پہلے، ہمارے ہاتھ اٹھ کر نیچے آنے سے پہلے ہماری دعائیں قبول کر دیتا ہے. الحمدللہ. تو اس امید پر انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعائیں مانگیں گے اور سب کے لیے دعائیں مانگیں گے کہ اللہ ہماری طرح سب کو بھی پورا امت مسلمہ کو خوش رکھنا، تمام کے جائز حاجات کو پورا کرنا، تمام کے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر، جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہو گئے تمام کے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں ہدایت دے. ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہمیں آزمائش میں مت ڈالنا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے اللہ ہم کو ہمت دے اور
ہمیں آگے بڑھنے کی، دین کے احکامات پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق دے. یا اللہ تو بس اسی امید کے ساتھ میں دعا ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا، اور جو بھی ہم پڑھائیں گے ہم پہلے سنیں گے، سمجھیں گے اور خود عمل کریں گے، اور بعد میں دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. باجی کی آواز بسم آ اللہ رہی ہے؟ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہاں نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر دین کی نسبت لا کے جمع کیا، قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے. الحمدللہ. دیکھو بہنوں، آیتیں چل رہی ہے یہود اور نصرانی کے بارے میں. لاسٹ ٹائم جب ہم نے یہ سبق کیے تھے تب جو آیت نمبر پہلے کے چل رہے تھے 13 تک، وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں سے کیا لیے تھے، پختہ ارادہ لیے تھے، وعدہ لیے تھے، پر وہ لوگوں نے کیا کیا، ان وعدوں کو توڑ دیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل کو سخت کر دیے. اب دیکھو بہنوں، یہاں پر یہ لوگوں نے بھی وہی غلطی کی، اور نصرانی نے بھی ویسی ہی غلطی کی. اور اللہ تعالیٰ ہم کو کسی کی غلطیاں کیوں بتا رہا ہے بہنوں؟ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں یہ باتیں چل رہی ہے، کیوں یہ ٹاپک چل رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ میری اور تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میں اور تم اسی نقش قدم پہ چلے. کیا ہوا بہنوں یہودیوں کے ساتھ؟ جب انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، اللہ کی لعنت آ گئی ان پر. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سخت کر دیا. جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا بہنوں، تو کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بھی ان کے سامنے ہو رہا ہوگا نا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم قرآن کی کوئی بھی آیت بتاؤ، ان کو حدیثوں کے بارے میں بتاؤ، ان کو کچھ بھی معجزے بتا دو، کوئی بھی ان کو کچھ بھی کرشمے بتا دو، ان کو کرامتیں بتا دو، ان کو کوئی فرق ہی نہیں آئے گا. ان کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ سخت ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے بہنوں. یہ بہت ہی برا سٹیج ہے بہنوں، یہ جہاں پہ دل کیا ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، انسان کے آنسو نہیں نکلتے پھر. اب یہاں پہ دیکھو کیسے ہو رہا ہے یہودیوں کے ساتھ. تھا یہ لوگ جو تھے، یہ دنیا کے لائن سے تو روئیں گے، جب ان کو پیسہ نہیں ملے گا، دنیا نہیں ملے گی، اس کے لائن سے روئیں گے، پر دین کے لائن سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. آیتوں کو سن کے ان کو رونا ہی نہیں آئے گا. اب یہی غلطی کون کر رہے؟ نصرانی کر رہے. اس کے بارے میں ابھی آج آیت آئے گی. اور یہی غلطی آج یہ امت بھی کر رہی ہے بہنوں. اللہ کے وعدے کو توڑ دیے. ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا نا، جب میں نے اور تم نے کلمہ پڑھا تو گویا ہم نے اللہ سے پختہ ارادہ کر لیا، وعدہ کر لیا ہے نا، عہد کر لیا بہنوں کہ ہم کیا کریں گے. جیسے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ہے نا، کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، تو جب میں نے مان لیا کہ اللہ میرا آقا ہے، تو میں اس کی جب غلام ہوں، اس کی بندی ہوں، تو بندگی کرنے میں کیا شرم، غلامی کرنے میں کیا شرم بہنوں. پر ہم کہیں نہ کہیں کیا ہو گئے ہیں، بھٹک گئے. ہم کہیں نہ کہیں کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے. اور یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے آنکھوں کو کھول رہا ہے کہ اہل کتاب کے جیسے مت بنو. آج ان کا جو حال ہو چکا تھا، آج ہمارا بھی یہی حال ہو رہا ہے بہنوں. دیکھو یہ آیتیں جب چلے گی نا بہنوں، تو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایسا لگے گا کہ آج ہمارے مسلمانوں کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. کیونکہ مسلمان بھی لوگ نے بھی کیا کرے ہیں، ہم مسلم لوگ نے بھی کیا کیے بہنوں، اللہ کے وعدے کو توڑ دیے. اور کیا ہو رہا ہے بہنوں، ہم بھول گئے ایک حصہ جو ہم کو نصیحت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نصیحت دی گئے تھے بہنوں، ہم وہ سب باتوں کو بھول گئے. یعنی قرآن کے حق کو بھول گئے بہنوں. قرآن کے 5 حق ہے نا،
ہاں ہم لوگ زندگی بھر تک دو ہی حق ادا کرتے آ رہے ہیں. اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ایمان لا رہے ہیں, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. اور دوسرا کیا کر رہے؟ پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے, رات دن پڑھ رہے. اور ابھی بھی بہنوں اگر میں تجوید کی کلاس شروع کر دوں گی نا تو 100 سے زیادہ بہنیں آ جائے گی تجوید کلاس میں. آپ دیکھنا اتنی بہنیں انٹرسٹڈ ہوتی ہے بہنوں, اور وہیں جب تفسیر کلاس شروع ہوتی ہے وہ بہنیں غائب ہو جاتی. کیوں بہنوں؟ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہر بہن کو آسانی چاہیے. نماز بولو, ان کو وظیفے بولو, وہ کرنے کو تیار رہیں گے. تجوید کی کلاس کے لیے پہلے آ کے کھڑے ہو جائیں گے, کوئی بھی دوسری کلاس رہے گی آ کے کھڑے ہو جائیں گے بہنوں. مگر تفسیر کی کلاس آنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے جلدی بہنیں تیار نہیں ہوتی ہے. ریزن یہی ہے کہ ڈر رہتا ہے کہ بھائی کیوں سیکھنا, کاहे کے لیے, چھوڑو نا, جتنا آتا ہے اتنا کم, اتنا بس ہے. زیادہ معلوم ہوگا تو زیادہ پکڑ ہو جاتی, زیادہ پوچھ ہو جاتی, چھوڑو نا, کیا کرنا ہے, اللہ اللہ کر کے چلو, بس ہو گیا, جتنا کرتے اتنا بس. یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے بہنوں, ہے نا. جتنا علم آ جائے گا اتنی پکڑ ہو جائے گی, اتنا حساب ہو جائے گا. چھوڑو چھوڑو, کیا ضرورت ہے, اتنا کر لیتے نا, بس ہو گیا, کافی ہو گیا. یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے بہنوں. 3 اور حق ہے قرآن کے جو آج ہم ادا ہی نہیں کر رہے, نہ اس کو سمجھ رہے, نہ اس پر چل رہے. ہاں عمل سے خالی, اور کیا ہے, پھیلانا بھی چھوڑ دیے. اب انشاءاللہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے جو یہودی نصرانیوں نے کر چکے ہیں بہنوں. ہاں, اور اس کے وجہ سے ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. کیا ہوا بہنوں؟ یہ ایک جو یہودی لوگ ہیں یہ آج بھی کوشش کر رہے ہیں. کس کے لیے, کیا چیز کے لیے کوشش کر رہے؟ سازشیں کر رہے, دھوکہ دے رہے. ایسے بہت سارے ہیں جو آج بھی بہنوں ہم مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی بہت زیادہ پلاٹنگ اور پلاننگ کر رہے ہیں بہنوں. پون پکچرز اور پون چیزوں کو یا بے حیائی کو عام ہو گیا. ایک گانا بھی آپ دیکھ لو, اس میں بے حیائی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس میں شراب ہوتا ہے, اس میں لڑکا لڑکی زنا کرتے, یا تو کچھ بھی, مطلب ان لوگ کا جو لو چل رہا ہے. اور پیچھے بہنوں, پیچھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, پر ایسے لڑکے لڑکیاں ناچتے رہیں گے جو بکینیز پہنی ہوئی. یعنی لڑکیوں کو ایسے ہی ڈال دیا گیا ہے ہر گانوں میں. یعنی کہ شراب بتا رہے, جوا بتا رہے, کھیل کود بتا رہے, ہمارے بچوں کو گیموں میں مصروف کر دیے. لڑکوں کو ہمارا دن بھر اتنا کام کر کے آتے, صبح سے لے کے شام تک کی, رات کو اگر ان کو کوئی قرآن کلاس میں آنے بولو وہ آنے کو ہی تیار نہیں. ان کو بولتے تھک گئے بھائی, ابھی چھوڑو, ہم کو کچھ دیکھنے دو, کچھ اچھا دماغ ذہن نا فریش ہونے دو. وہ بھائی لوگ اور سب لوگ ہمارے ایسے ہو گئے, وہ کچھ تو کچھ دیکھتے دیکھتے بس ان کا ہو جاتا ہے نا, کٹ جاتا ہے دن ایسا. یعنی یہ حال ہو رہا ہے بہنوں آج امت کا. کیا ہو رہا ہے؟ ہم کو ہمارے مذہب سے دور کرنے کے بہت سارے پلاٹنگ ہو رہے ہیں بہن, اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے. اور ایسے لوگوں کو کیا کرنے کے لیے کہا ہے بہنوں؟ ان کو درگزر کرو, معاف کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ کل تک کی ہماری, مطلب وینسڈے تک 13 جو ہمارا آیت تھا, وہاں تک ہمارا یہ سبق تھا بہنوں. ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں پہ ہم کو آج ہماری آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے بہنوں. ہم کو اللہ کی لعنت نہیں چاہیے, ہم کو اللہ کا غضب اور غصہ نہیں چاہیے. ہم نے ابھی دیکھا ٹرکی اور سائریا میں کیا ہوا. اتنا ڈر خوف ہوتا ہے وہ ویڈیوز دیکھ کے بہنوں, کچھ سن کے ہم کو اتنا ڈر خوف ہوتا ہے. اللہ سب کی حفاظت کرے. جن کے ساتھ یہ ہوا رہے گا ان کا مینٹل سٹیج کیا ہوا رہے گا, سوچ کے دیکھو بہنوں. یہ عذاب ہے کہ اللہ کی آزمائش ہے, ہم کو اس میں نہیں جانا ہے. وہ تو اللہ جانے اور بندہ جانے, ہم کو کیا کرنا ہے. ہم کو اس سے سبق لینا ہے بہنوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس کی پکڑ وہ ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بندہ پلٹ کے کب آئے گا, اور جب بندہ آتا ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں, جب وہ پکڑتا ہے نا اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اور اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے, ہے نا. آمین آمین آمین. دیکھو بہنوں, یہ جو بھی حادثات ہوئے تھے اس میں کتنے میریکلز بھی ہوئے تھے نا. کتنے بچے ایسے تھے, کتنے لوگ ایسے تھے جو 100 گھنٹے, 50 گھنٹے, 40 گھنٹے بہنوں وہ بلڈنگوں کے اندر تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا رہا تھا, ان کی سانسیں باقی رکھا تھا. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے, مگر اللہ جب چاہتا ہے تو زندہ رکھ کے دکھاتا ہے. اور یہ سب ہمارے لیے ایک بولتے نا معجزہ ہے بہنوں, ہے نا.
एक बच्ची के बारे में सुना कि वो बच्चा था या बच्ची थी, वो कितने 114 कितने तो घंटे, आई डोंट नो, 100 से ज्यादा घंटे वो जिंदा थी। और लोगों ने कहा कि तू कैसे सरवाइव की, तू कैसे बची। वो कहती है कि कोई सफेद कपड़े में आके उसको पानी पिलाता था। अब वो कौन था, वल्लाहु आलम। मगर जब ये सब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना ईमान जाग जाता है, ऐसा लगता है कि या अल्लाह, आज भी अल्लाह तेरे करिश्मे तेरे मौजिजे मौजूद है। तू आज भी इंसानों को बचाता है, तू आज भी इंसानों पे रहम करता है, तू देखता है या अल्लाह, है ना, तू कितना चाहता है या अल्लाह। और बहनों हमेशा याद रखना, अगर हम अल्लाह के रास्ते में रहे, अल्लाह से कनेक्टेड रहे और अल्लाह के दीन पर रहे, और अगर हमारे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो ये हमारी क्या है, आजमाइश है बहनों, है ना, टेस्ट है। और अल्लाह ना करे अगर हम अल्लाह से दूर होते हैं, अल्लाह के दीन से दूर होते हैं, अल्लाह के हर काम से दूर होते हैं बहनों, और अगर किसी के ऊपर ये होता है तो ये सब क्या है, अजाब है बहनों। समझ में आ रहा है। हमारी ये आजमाइश क्या होती है पता है, कि जब हम ऐसी रास्ते में रहते हैं और हमारे साथ अल्लाह ना करे, वो तो आजमाइश तो होगी होगी, है ना। अल्लाह ताला खुद ही कहता है कुरान में कि मैं तुमको आजमाता ही रहूंगा, मरते दम तक आजमाता ही रहूंगा, माल से, जान से, कमी से, पेशी से, फल से, है ना, हर चीज से अल्लाह ताला हमको आजमाता ही रहेगा बहनों। कमी पेशी होगी, है ना, किसी का इंतकाल होगा, किसी को कोई नुकसान होगा, ये सब होगा बहनों। मगर अगर कोई सब्र कर लिया, है ना, और क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसके लिए रहमत है, बरकत है, उसकी गुनाह माफ है बहनों। तो क्या समझ में आ रहा है बहनों, क्या समझ में आ रहा है कि हमारे साथ आजमाइशें होगी, हमको सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। और अगर हम अल्लाह के उस फैसले पे राजी हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है बहनों। हाँ, हमारे गुनाह माफ होंगे, हमारे दर्जे बुलंद होंगे, और जन्नत तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब एक बात कभी भी हम याद रखें बहनों। अभी बहुत सारे लोग इंटरनेट में डरा रहे हैं कि क्या अभी पाकिस्तान की बारी है, अभी इंडिया की बारी है, वहां हो गया, अब यहाँ आने वाला है। देखो बहनों, ये सब अल्लाह के हाथ में, लोगों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। हर एक की बारी आती है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, कभी उसकी कभी इसकी, हर एक की आजमाइश तो होनी ही होनी है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, पूरे दुनिया में अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, हर एक को ऐसे आफत और मुसीबत से बचाए। और अल्लाह ताला जो है हमारे ईमान को हमेशा मजबूत रखे, हमको इन आजमाइशों में पास कराए, है ना। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ बहनों, जहाँ पे अल्लाह ताला हमको बहुत बड़े बड़े सबक सिखा रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ कि उम्मत का क्या हाल है बहनों। हम लोग एक्चुअली क्या है ना, कि हम लोग इंडिया में रह के हिंदूज के साथ इतने साल, आई थिंक 100 से ज्यादा साल रह के हमारे अंदर पूरे उनके तरीके आ गए, है ना। हम लोग जो मुस्लिम्स है वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि जो भी रस्म, जो भी रसूमात, जो भी ट्रेडिशंस और कल्चर गैर मुसलमान के हैं, वो सब हमारे अंदर आ चुके हैं, है ना। हमारे 2 ईदों के अलावा हम क्या क्या तो कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करने हमको यहाँ लाकर बिठाया। आज एक बहन बता रही थी कि उसके घराने में कोई बच्ची जो है वो मेच्योर हो गई, पीरियड्स आ गया। और गरीब लोग हैं बहनों, मगर उन लोग में रस्म होती है, देखो, फंक्शन किया जाता है। और इतना ही नहीं, एक छोटा फंक्शन किए बोलते हैं घर उतना, जहाँ पे इतने लोगों को बुलाए, 100 के करीब। और फिर एक बड़ा फंक्शन होता है जहाँ पे 800 1000 लोगों को बुलाते हैं। और मैं इतनी हैरान हो गई सुन के, मैंने कहा कि तुम लोग के पास इतना पैसा है जो तुम लोग इतने बड़े बड़े फंक्शंस करते हो। तो उसने कहा कि नहीं, हम लोग कर्जा लेके करते हैं, पर जरूर करते हैं। मैंने कहा कहाँ से साबित है ये, तुम क्यों कर रहे हो ये सब काम है और कर्जा लेके। तो कहा कि अरे, ये अभी तुम जो ये नया नया इस्लाम ला रहे हो ना, वो मुझे बता रही है कि ये जो तुम नया नया बात बोल रहे हो ना, ये कहाँ से बोल रहे हो। हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं वो 100 साल से हमारे दादा पर दादा से चलते हुए आ रहा है, कि कोई भी बच्ची जब बड़ी होती है तो उसका फंक्शन करना। तो ये तो हमारे दादा पर दादा से चलते हुए आ रहा है, तुम लोग ये नया नया इस्लाम कहाँ से लाए। तो अब कैसे हो गया, इस्लाम एक अजनबी हो चुका है, एक नया चीज हो चुका है ना। लोगों को ये सब नया लग रहा है, जब हकीकत आती है तो ये सब नया लग रहा है, अजनबी लग रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे फैमिलीज में भी हो रहा है बहनों, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, हम सबको हिदायत दे। और जब बोलने पर तो यही बातें सुनने आती है, और पैसे देखो कहाँ से ला रहे हैं। यानी मैंने उसको यही कहा कि अल्लाह कबूल तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये शिर्क और बिदअत कामें हैं। फिलहाल जितने भी पैसे, मेहनत, टाइम, एनर्जी, सब क्या हो जाता है बहनों, अल्लाह ताला क्या बोलता है, कल ये सब जाया हो जाएगा,
इसका कुछ भी बदला नहीं दिया जाएगा, और फिर इंसान अफसोस करेगा, है ना, पछताएगा, है ना, साउथ में बहुत होता है ये, और इंसान पछताएगा। इनफैक्ट बहनों, लड़कों का जब सरकमसेशन करते हैं, खतना बोलते हैं उसको, उसमें भी बहनों, उसमें भी इतनी बड़ी दावत, एक इंसान, मेरे रिश्तेदारों में ही बता रही हूँ, गरीब लोग हैं बहनों, कार्ड छापे उन लोगों ने, हाँ, और कार्ड छाप के दे रहे हैं, और हॉल में फंक्शन हो रहा है, और हजारों लोगों ने खाना खा के गए, यानी 25-30 किलो का डेगचा बिरयानी बन रहा है। मैं तो नहीं गई, पर बता रही हूँ, जब मैंने ये सुनी मैं इतनी हैरान हो गई। मैंने बोली वो तो गरीब है, वो तो बेचारा मैकेनिक है, गैरेज में काम करने वाला। तो बोले बस कर्जा भी लेना पड़ता है तो चलेगा, पर हम लोग को करना ही है, फर्ज जैसा होता ना, वैसा ये चल रहा है बहनों। तो कितनी बड़ी गुमराही की बात है बहनों, ये उम्मत कितना दीन से दूर चले गई है, और हमको कितनी मेहनत करना है इससे पता चलता है। तो अल्लाह ताला हमको कबूल करे ऐसी मेहनतों के लिए, और हमको खड़ा करे कि हम दीन फैलाने वाले बने। आमीन आमीन आमीन। इससे पता चल रहा है कितना ये दुनिया में गफलत है ना बहनों, कितना कुरान से दूर हो चुके हैं। देखो आज की आयतों पे आ रही हूँ, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अभी तक जितनी भी बातें बताई गई है सबको समझ में आया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। खानदानों में भी ये फंक्शंस हो रहे हैं बहनों, क्या सुने आप लोगों ने ऐसे फंक्शंस के बारे में? जी सोशल मीडिया पर देखा है। सोशल मीडिया में, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, कितना कुछ हो रहा है, कोई फातिया रख रहा है, कोई चिराग जला रहा है, कोई क्या कर रहा है, यानी हम भी कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। तो आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ, ये आयतें उसी से कनेक्टेड है बहनों, और मैं सचमुच सोच रही थी कि या अल्लाह तू ही है जो हमारे आंखों को खोलता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं बहनों आयत नंबर 14 पे। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला हमसे क्या क्या नसीहत कर रहा है, हमको क्या क्या बोल रहा है, गौर और तवज्जो से हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, नियत करके बैठेंगे कि या अल्लाह, अमल की नियत से बैठेंगे, जो भी सुनेंगे उसको आगे पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह, अमल करते हुए, आगे पहुंचाते हुए, हम तक ये नूर आ गया है, हम इस नूर को क्या करेंगे, आगे फैलाएंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, टर्न हो गया पेज। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आयत नंबर 14 में आ जाते हैं बहनों, जहाँ पर अल्लाह तबारक ताला, आवाज स्लो आ रही है बाजी, ओके, सबको मेरी आवाज स्लो आ रही है कि प्रॉपर है बहनों? मुझे प्लीज चैट पे बता। क्लियर है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजिया सिस्टर, आप थोड़ा सा नेटवर्क साइट पर आ जाओ, ओके। टीचर्स प्लीज मुझे बताया करना कि अगर कुछ भी आवाज में हो रहा है तो। आ जाते हैं जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला यहूदी के बारे में बता दिया। अब जो है अल्लाह ताला नसरानी यानी क्रिश्चियंस के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है बहनों? कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, और उन लोगों में से किन लोग, यानी कि अल्लाह ताला किसके बारे में कह रहा है? उन लोगों में से जिन्होंने कहा कि बेशक हम क्या है, नसरानी है। यानी यहूदी के बारे में अल्लाह ताला नसरानी के बारे में बता रहा है, जो कि क्रिश्चियंस है, जिनको इंजिल किताब दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने इनको नसरानी लफ्ज नहीं रखा था, इन्होंने अपने आप को खुद ही क्या कह रहे हैं, देखो अल्लाह ताला यही कह रहा है कि उन लोगों में से जिन्होंने क्या कहा, जो खुद ने ये नाम रखा बहनों, अल्लाह ने इनका नाम नहीं रखा, अल्लाह ने सबको मुसलमान बनाया, सबको अल्लाह ताला ने क्या बनाया, मुस्लिम बनाया। ये जो नसरानी वर्ड है, ये इन्होंने खुद अपने आप का रखा था बहनों। जैसे कि आज जो है, नसरानी लोग कौन है? जो एक शहर का नाम है बहनों, ओके, नसरा करके एक शहर का नाम था, वहां के लोगों ने अपना नाम नसरानी रख दिए थे। वैसे ही बहनों, जो देवबंद में रहते हैं या बरेली में रहते हैं, वो लोग अपने आप को क्या बुलाते हैं? देवबंदी, बरेली। समझ में आया? ये इन्होंने ये नाम कैसा रखा? वो शहरों में रह के उन्होंने ये नाम रखा। समझ में आ रहा है? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे नाम अपने रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये नाम नहीं रखा। अब जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा, उनके मसलक को फॉलो करने वाले हनफी नाम रख देते, है ना। जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करने वाले अपने आप को शाफी कहते हैं। अल्लाह ने कभी नहीं कहा। लोग पूछते कि आप कौन है? मैं हनफी हूँ।
हम लोग कौन है? मुस्लिम है बहनों। ओके, ये खुद ही से हमने रख दिया हनफी, शाफी, है ना, देवबंदी, बरेली, पता नहीं अहले हदीस, क्या क्या तो नए नए नाम हमने खुद ही से रख दिए बहन। हम लोग सब कौन है? मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों, कब्र में भी 3 ही सवाल करेगा अल्लाह ताला, है ना, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। और उसके बाद चौथा सवाल नहीं है कि तुम कौन से मसलक के हो, तुम किसको फॉलो कर रहे थे, नहीं, है ना। हम कौन है? मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये जो नसरानी थे, हाँ, इन्होंने क्या कहा, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि उन लोगों में से जिन्होंने अपने आप को क्या कहा? नसरानी कहा, हमने इनसे भी क्या लिया था? उनका पुख्ता अहद लिया था, उनसे भी वादा लिया था। जो किताब इनको इंजील दी गई थी, उसको उनको मजबूती से पकड़ना था, फॉलो करना था। मगर क्या हुआ? फिर वो भूल गए एक हिस्सा जिसमें से उनको नसीहत दी गई थी साथ उसके, यानी जो किताब उनको दी गई थी, हाँ, जो वादा उनसे लिया गया था, वो भूल गए एक हिस्सा उसमें से जो नसीहत दिए गए थे जिसकी। आज हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है बहनों। हम भी क्या कर रहे हैं बहनों? अल्लाह के हक को भूल गए, कुरान के हुकूक को भूल गए। हम भी क्या हो गए बहनों? बहुत सारी बातें भूल गए। जैसे कि ये जो लोग थे, यहूद और नसरानी थे, इनकी किताबों में लिखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, है ना, तुमको इन पर ईमान लाना है, इनकी मदद करना है, इनको सपोर्ट करना है, इनको ताजीम करना है। ये मेन वादा तो इनसे लिया गया था। पर ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने इस वादे को भूल गए। हम्म तो अल्लाह ने भी क्या किया बहनों? अल्लाह ताला जो है सजा तो देगा ही देगा। जब इन्होंने इस वादे को भूल गए, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ने फिर रख दिया उनके दरमियान किसको? अदावत, यानी दुश्मनी को। और किसको? दुश्मनी और नफरत को। कब तक? कयामत के दिन तक। अब जो भी लोग अल्लाह के वादे को तोड़ देंगे, अल्लाह ताला ने उनके दरमियान क्या डाल दिया बहनों? एक तो दुश्मनी और दूसरा नफरत। आज हम मुसलमान भी जब कुरान को भूल गए, कुरान की रस्सी को छोड़ दिए, तो अल्लाह ताला ने भी हमको क्या किया? फिरकों में बांट दिया। हम भी क्या हो गए? ग्रुप्स में बट गए हैं। ये सबसे बड़ा अजाब है बहनों अल्लाह की तरफ से, जो हम क्या हो गए हैं? बिखर गए हैं। हमको कैसा होना था? एक बन के रहना था। यहूदी भी देखो 71 फिरके में हो गए, क्रिश्चियंस 72 फिरकों में हो गए, और हम मुसलमान जो है वो 73 फिरकों में बट गए हैं। और सिर्फ एक ही फिरका है बहनों, सिर्फ एक ही जमात है जो जन्नत जाएगी बहनों। सहाबा ने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो कौन सी जमात होगी जो जन्नत जाएगी। नबी ने कोई नाम नहीं कहा, अच्छा हुआ नाम नहीं कहा, वरना सब जमातें वही नाम रख लेते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो कौन सी जमात होगी बहनों? जिस पर सहाबा है। क्या कहा? जिस पर सहाबा है वही जमात, जिसमें नबी और सहाबा है, वो जमात जो है वो कहाँ जाएगी? जन्नत जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या पता चलता है बहनों? जो जमात कुरान और हदीस पर चलेगी वो कहाँ जाएगी? जन्नत जाएगी। हमको फिरकों में नहीं बंटना है बहनों। समझ में आ रहा है? हमको और कोई नाम अपना नहीं रखना है। हम कौन है? मुस्लिम है। और अल्लाह ताला कहते हैं, और अनकरीब यानी सून अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला जो है उन्हें खबर देगा उसकी जो वो क्या करते थे? अमल करते थे। अब अल्लाह ताला जो है ये वार्निंग दे रहा है कि ऐसा मत समझना कि अल्लाह को कुछ नहीं मालूम। हाँ, अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है बहनों? ये अल्लाह ताला जो है ये सब रिकॉर्ड कर रहा है, सब देख रहा है, ही इज वॉचिंग ओवर एवरीथिंग। और करीब जरूर अल्लाह ताला क्या करेगा? खबर देगा उस चीज का जो वो लोग क्या कर रहे थे? अमल कर रहे थे। यानी आज क्या हो रहा है? हम अल्लाह के हक को या तो जाया कर रहे हैं या तो कमी पेशी कर रहे हैं। कुरान है, नबी की सुन्नत है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक है, इस सबको हम या तो कमी कर रहे हैं या तो जाया कर रहे हैं।
है ना, अल्लाह से ताल्लुक कम होके दुनिया में हम ज्यादा हो गए। तो ऐसे लोगों को कभी ना चैन मिलेगा ना सुकून मिलेगा, और उनके दरमियान टूट फूट हो रही है बहनों। आज हमारे दरमियान नहीं हो रहा है बहनों, मियाँ बीवी लड़के मर रहे, कितने तलाकें होती है पता है आपको? दिन में मुसलमानों में सर्वे करके देखते हैं तो इतनी सारी तलाकें। एक आया था कुछ साल पहले का सर्वे, एक शहर, एक बैंगलोर शहर का ही सर्वे किए थे, दिन में 8 से 10 सिर्फ पेपर्स आते हैं बहनों, यानी कि जो फॉर्म्स होते हैं उसके आते हैं, जहाँ पे मियाँ बीवी के दिन के 10 से 8 तलाकें होती है बहन एक शहर में। तो सोचो बहनों, क्या ये दुश्मनी और नफरतें पैदा नहीं हो गई है लोगों के आपस में? हाँ, क्या हो रहा है बहनों, जब हम जो नसीहत हमको दी गई है, जब यहूदी और नसरानी भूल गए तो उन पर लानत हो गई, उनके दिल सख्त हो गए, दुश्मनी और नफरत फैल गई बहन। आज यही चीजें कहाँ है बहनों? हमारे मुसलमानों में नहीं है। हाँ, हमारे भी दिल सख्त हो गए, हमको पिक्चर देख के, सीरियल देख के रोना आता है बहनों, हमको पिक्चर देख के, सीरियल देख के रोना आता है, पर कुरान की क्लासेस में आके रोना नहीं आता, कुरान की आयतें सुन के रोना नहीं आता। दुश्मनी और नफरत हमारे खानदानों में, हमारे फैमिलीज में और हम मुसलमानों में इतना हो चुका है कि कल के दिन अगर कोई वॉर हो गई बहनों, तो पता नहीं है मुसलमानों का क्या होगा, क्योंकि एक लीडर है ही नहीं हमारा, एक लीडर के अंडर हम लोग आ ही नहीं सकते। मैं बोलूंगी मैं फला जमात क्यों, मेरे फला को मेरे लीडर बनाओ, वो बोलेगा फला मेरा लीडर है, मैं फला जमात का हूँ, उसको लीडर बनाओ। यानी कोई, हम लोग एक फ्लैग के अंदर, एक झंडे के अंदर आ ही नहीं सकते। हम लोग इस्लाम में रह के एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान के अंदर हम लोग एक फ्लैग के अंदर आ ही नहीं सकते, एक झंडे के अंदर नहीं आ सकते। हमारे अंदर इतने फिरके जमाते हैं बहन। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसी कोई जंग छिड़ जाए, हमारे दुश्मन हमारा फायदा उठाएंगे, है ना, वो जमात में जाके मिल जाएगा, वो उससे मिल जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बहनों? हाँ, ये सब चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुरान को सीरियसली हमारी जिंदगी में लाना पड़ेगा, कुरान के हुकूक को अदा करना पड़ेगा। कुरान अगर हर एक की जिंदगी में आ गई, पता है बहनों, हमारे घरों में भी पहले बेहयाई, बिदअत, शिर्क और नफरतें, दुश्मनियां, गुनाह सब था। जैसे जैसे कुरान जिंदगी में आया, नूर जब जिंदगी में आया, तो अंधेरे चले गए, दुश्मनी कम हो गए, मिट गए, नफरतें हट गई, हर एक से मोहब्बत आ गई। अभी हर एक जगह हम देखते हैं शिर्क और बिदअत से बचने वाले हम लोग हो गए। समझ में आ रहा है बहनों? तो ये कुरान अपना मौजिजा जिंदगी में लाता है बहनों। हमारे बच्चे नाफरमान है, बच्चे सुनते नहीं है ना, कुरान लाओ जिंदगी में। एक मर्तबा हजरत उमर ताला अन्हु से किसने पूछा कि बच्चे बहुत नाफरमान है, क्या करे? तो कहा कुरान उनकी जिंदगी में लाओ, कुरान जिंदगी में लाओ। बच्चे लोग को जब पता चलेगा कुरान में क्या है कि उफ तक मत कहो, हाँ, तो बच्चे तब सीखेंगे ना। हमारे बच्चों के जहन में, बच्चों के जिंदगियों में पूरे डिग्रीज है, मगर जब कुरान ही नहीं पता, जब हदीस ही नहीं पता, तो वो क्या है पता है बहनों? सबसे बड़ा फकीर है। उसके पास कितने भी डिग्रीज क्यों ना हो, नासा ही क्यों ना चले जाए, वो चांद तक क्यों ना पहुंच जाए, अगर उसके पास कुरान और हदीस का नूर नहीं है, उसका इल्म नहीं है, तो उससे बड़ा फकीर कोई नहीं है। क्योंकि ना वो अल्लाह के हक को अदा करेगा, ना वो नबी के हक को अदा करेगा, ना ही वो इंसानों के हक को अदा करेगा। आज इतनी दुश्मनी नफरत क्यों है बहनों? भाई भाई का दुश्मन हो चुका है, भाई भाई के लिए जो है वो आज सुपारी दे रहा है जान से मारने की बहन। आज मोहब्बतें मिट चुकी है, खत्म हो चुकी है बहनों, आज ये हाल हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कुरान की तालीम से दूर हो चुके हैं। समझ में आ रहा है बहनों? तो जो यहूदी नसरानी ने गलती की है, हमको वो गलती नहीं करना है इंशाअल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझने वाला, चलने वाला और उसको फैलाने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। सबको ये आयत समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबको सब बातें क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बाकी सब बहनें जाग रही है कि सो रही है? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, जी भाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, मुझे पता है बहनों,
का वक्त है, सबको नींद आती है, और ऐसी दीन की महफिल में सकीना उतरती है ना, फरिश्ते ढांप लेते, तो रहमत में और भी नींद आती है, मैं समझ सकती हूँ। मगर थोड़ा सा हम कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताकि ये बातें मेरी जिंदगी में आ जाए, मैं अहले किताब जैसी ना हो जाऊं, है ना। अल्लाह ताला हमको इनसे हिफाजत करे, है ना, हमको ऐसे नहीं बनना है बहनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आगे जो है अल्लाह ताला जो है अब वापस से खिताब कर रहा है, किसको खिताब कर रहा है? दोनों को। पहले यहूदी को कर रहा था, फिर नसरानी को कर रहा है, अब दोनों को करेगा, और फिर दोनों हम सबका इलाज भी बताएगा। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि खाली बीमारी बता रहा है, हाँ, उसका इलाज भी बताएगा इंशाल्लाह। अब दोनों को क्या कहा जा रहा है कि ए अहले किताब, हाँ, दोनों को कहा जा रहा है, यहूदी नसरानी, हाँ, हम भी आ जाते हैं इसमें। ए अहले किताब, क्या कहा जा रहा है कि बेशक आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वाजे करते हैं तुम्हारे लिए बहुत सी बातें, यानी बहुत कुछ जो है वो तुमको वाजे करते हैं, क्लियर करते हैं। ओके, किससे? उसमें से जो तुम थे छुपाते किताब में से, यानी किताब की ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो लोग क्या कर रहे थे? छुपा रहे थे। जैसे कि क्या बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी पैगंबर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, उनको वेलकम करो, उनको साथ दो, उनको ईमान लाओ, उनको हेल्प करो, उनको सपोर्ट करो, ये सब बातें अहले किताब छुपा रहे थे। फिर कितनी ऐसी इंफॉर्मेशन थी बहनों जो वो लोग छुपा रहे थे, जैसे इंटरेस्ट उनके लिए हराम था, फिर भी वो लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। वो लोग जो है अल्लाह के अलावा नाउज बिल्ला पैगंबरों को अल्लाह के साथ दर्जा दे रहे थे, है ना। तो कैसी कैसी हरकतें शिर्क के काम में कर रहे थे वो लोग, है ना, अल्लाह की तौहीद के साथ गलत काम कर रहे थे। फिर वो लोग नबी को जो है वो मान नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अहले किताब जो है यहूदी और नसरानी, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस को कहते हैं। ओके, और ये काम जो है ना बहनों आज भी यहूदी नसरानी कर रहे हैं बहनों। जो इनके उलेमा होते हैं ना, वो लोगों को ही किताब का इल्म रहता है बहनों, और वो लोग बाकी सब लोगों को है ना इस किताब के नॉलेज से दूर रखते हैं बहनों। आज भी हो रहा है ये, आज भी हो रहा है बहनों ये। और ये सब उनका करने का मकसद क्या है पता है? कि दे डोंट नो, दे शुड नॉट नो द ट्रुथ। वो लोग सच्चाई से जो है ना लोगों को जो है वो बता नहीं रहे। समझ में आ रहा है? यानी कि जो लैंग्वेजेस होती है, जो लैंग्वेजेस में होती है ना, इंजील और तौरात, हिब्रू लैंग्वेज और एरमेनिकल कुछ अलग लैंग्वेजेस होती है, वो अरामिक कुछ लैंग्वेज है बहनों, हिब्रू तो है वो मुझे पक्का पता है। वो सब लैंग्वेजेस सबको नहीं आती, करेक्ट। और ये सब लैंग्वेजेस से ये लोग क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि सिर्फ लर्नड लोग हैं, उलेमा लोग हैं जिनको सब पता है, और बाकी सब लोगों को लोग दूर रख रहे हैं। द सेम वे बहनों, कुरान, कुरान से भी क्या हो रहा है? हमारे जो बड़े बड़े आलिम हैं, जो उलेमा है, उनको ही सिर्फ पता है कि कुरान में क्या लिखा है नहीं लिखा है। और हम लोग तो जाहिल, अब तक ऐसी जाहिल जिंदगी जी रहे, हमको तो पता ही नहीं कि कुरान में क्या है ना। कुछ भी होता है हम लोग किसको लाते हैं? एक मौलाना लोग को लेके आते हैं कि मौलाना बताओ ये निके में क्या करना, बकरीद में क्या करना, है ना। हर चीज के लिए हम किसी और को लाते हैं। हम लोग खुद इल्म से कितने दूर ना बहनों। हमको कोई पूछता है वजू के क्या फर्ज है, हमको नहीं पता। वजू किन बातें टूट जाता है, हमको नहीं पता। हमको खुद को किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है, एक उलमा को ढूंढना पड़ता है। कितनी नॉलेज की कमी हमारे अंदर है बहनों, जरा सोचो तो सही, है ना। मगर वही चीज अगर तुम मेरे को कोई दूसरी साइंस की पढ़ाई, इंग्लिश की पढ़ाई के बारे में बोलो, सब नॉलेज रहेगा मेरे पास। अब वो बचपन से सिखाया हुआ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा बैकशिप, वो भी मैं भूली नहीं हूँ, वो भी मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। पर वहीं पर मुझे अगर कोई दीन के बारे में बोलेगा तो सब मुझे, मैं क्या बोलूंगी, मुझे नहीं पता। कितने दूर है ना बहनों आज हम लोग इल्म से। यही चीज जो है वो उनके साथ भी था बहन। ये लोग भी क्या थे? दीन से दूर, है ना, अपनी किताबों से दूर। अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि हमारे नबी पाक सल्लम क्यों आए थे बहनों? ताकि जो छुपा रहे थे वो लोग किताब का, उसको वो क्या करे? जाहिर करे। और बास चीजों को उन्होंने क्या किया? दरगुजर कर दिया। मानी कि कुछ बातों को उन्होंने बताया और कुछ बातों को उन्होंने बयान नहीं किया। तो इससे क्या पता चलता है बहनों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
वो ही बता रहे हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म दे रहा है बताने के लिए, और जिन बातों को उन्होंने नहीं बताया वो अल्लाह का हुक्म था, उसमें भी क्या होगी, एक हिकमत होगी, है ना, हमको नहीं पता। और अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक आ गए हैं तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और किताबे मुबीन, यानी कि एक रोशन किताब आ चुकी है। यानी यहूदी और नसरानी को अल्लाह ताला आज भी मौका दे रहा है बहनों। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, इतना रहीम इतना करीम है कि ऐसा नहीं बोल रहा है कि बस अब तुम पर लानत है, अब दुश्मनी नफरत है, अब कुछ नहीं हो सकता, फिनिश नहीं। आज भी वक्त है। आज भी अगर ये यहूदी और नसरानी आज भी अगर इस कुरान की तालीम पर और सुन्नत पर, हदीसों पर, हाँ, सुन्नत तरीकों पर आ जाते हैं तो आज भी वो लोग बच जाएंगे। उसी तरह बहनों ये बातें हमारे लिए भी है। हमारे पास भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, हाँ, नूर बनकर अल्हम्दुलिल्लाह, और किताब भी लाए हैं, कौन सी, जो क्या है, रोशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे बड़ा फकीर वो है जिसके पास इल्म नहीं है, खासकर कुरान का इल्म नहीं है बहनों, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोबाइल कुरान थे, चलते फिरते कुरान थे बहनों, है ना। देखो ना कितनी जिंदगी में इत्मीनान था, सुकून था, कि वो सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले बंदे थे। आज हमारी जिंदगियों में ऐसा है बहनों कि कोई हम लोग को बोलना पड़ता है कि भाई मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे, क्या हो गया, है ना। कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ हम लोग जी रहे हैं बहनों। हाँ, हालांकि देखने जाओ तो कोई दुनिया दीन का स्ट्रेस नहीं है, बस स्ट्रेसफुल रहते हैं हम लोग। हाँ, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हंसाने के लिए इंटरनेट में देखते हैं, फिर जोक्स देखते हैं, हाँ, कितना कुछ देखते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाए। आधे लोग तो डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो हमको क्या करना है बहनों, उसी तरह हमारे जिंदगी में जितना दीन इस्लाम आएगा बहनों, जितना इस्लाम जिंदगी में आएगा, उतना स्ट्रेस जो है वो दुनिया से निकल जाएगा, हमारे अंदर से निकल जाएगा। इस्लाम इन स्ट्रेस आउट, इस्लाम इन स्ट्रेस आउट। समझ में आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले बंदे क्यों थे पता है बहनों, क्योंकि वो पूरे पूरे इस्लाम पर थे। समझ में आ रहा है। सहाबा, इतनी उनकी मशक्कत वाली लाइफ थी बहनों, पॉवर्टी में जी रहे थे। हमारे जैसी लग्जरियस लाइफ या लैविश लाइफ नहीं थी। हमारे पास तो फ्रिज भरा हुआ है, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, अरे क्या पकाएंगे, क्या करेंगे, ये नहीं वो नहीं। हम लोग का तो रोना गाना खत्म ही नहीं होता। दुनिया, हम लोग एक एक महीने का लाके बाजार रख देते हैं, हाँ, फिर भी हम लोग रोते ही रहेंगे। फिर भी हम लोग के जिंदगी में कभी दिख रहा है कि हम लोग इत्मीनान और सुकून से है। हाँ, हम लोग का फ्यूचर का टेंशन खत्म ही नहीं होता। मगर वही नबी और सहाबा इतने पीसफुल क्यों थे, इतना सुकून इतना इत्मीनान उनकी जिंदगी में क्यों था बहनों, क्योंकि उनकी जिंदगी में नूर था। उनकी जिंदगी में ये किताब, ये रोशन वाली किताब, ये नूर, ये रोशन, ये सब कुछ था बहनों। इसलिए मैंने कहा ना कि इंसान चाहता है कि उसका स्ट्रेस बाहर निकल जाए, उसकी जिंदगी में क्या आ जाना चाहिए, इस्लाम आ जाना चाहिए। इसके लिए अल्लाह ताला क्या कहता है कि एंटर इस्लाम कंप्लीटली एंड परफेक्टली। जितना इस्लाम में दाखिल होंगे उतना ही जो है हमारे जिंदगी से ये सब जो स्ट्रेस है ना बहनों, स्ट्रेस, ये बाहर निकल जाएगा। अगर हमारे अंदर एंजाइटी प्रॉब्लम्स है, या ये जो डिप्रेशन है, या जो भी टेंशन है, हाँ, ये सब अगर हो रहा है, मतलब हमारे अंदर क्या है, ईमान की कमी है। आ रहा है समझ में बहनों। और ये जो इंफॉर्मेशन जो आज भी जो यहूद और नसरानी ना बहनों हमसे छुपाते हैं, यानी कि वो लोग क्या दिखाते हैं बहनों, मीडिया उनके हाथ में है, जितने भी न्यूज चैनल्स है उनके हाथ में है। वो लोग क्या दिखाते हैं पता है, कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान ने ये किया, मुसलमान ने वो किया। समझ में आता है। हमारे मुसलमान कंट्रीज को वो लोग क्या दिखाते हैं कि अब बहुत बुरा कंट्री है ये, यहाँ जाओ मत, यहाँ पे लोग मर रहे हैं भूख के मारे, यहाँ पे जो है ना जंग होती रहती है, ये लोग टेररिस्ट है, ये सब दिखाते हैं वो लोग। हालांकि अंदर की स्टोरी कुछ और ही रहती है बहनों। वो लोग टेररिस्ट नहीं रहते, वहां पे कोई पॉवर्टी नहीं रहता है, पर ये लोग ऐसा जाहिर करते हैं हमारे कंट्रीज के बारे में। और अपने कंट्रीज के बारे में जो शान दिखाते हैं, सबसे ज्यादा सुसाइड रेट आज अगर कहीं होता है वो जापान, चाइना और यूएसए में होता है बहन। स्विट्जरलैंड सबसे खूबसूरत सिटी, हाँ, सबसे खूबसूरत कंट्री, सबसे सुसाइड वहीं होता है। अगर तुम लोग वाकई में इतने अच्छे लोग हैं, इतना तुम लोग के अंदर तरक्की याफ्ता शहर है, तो क्यों इतने जो है सुसाइड होते हैं।
हाँ, आप लोगों के लोग इतना सुसाइड क्यों करते हैं? एक पूरा फॉरेस्ट बना के रखे जापान में बहनों, सुसाइड फॉरेस्ट। यानी कि इंसान को इतना गम हो जाता है क्योंकि वहां पे इतना कंपटीशन है तरक्की के लाइन से, हर एक को तरक्की चाहिए, हर एक इतना काम करता है कि फिर वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वहां के होटल्स है जहाँ पे इंसान अकेला खाना खा जाता है, उन्होंने ऐसे होटल्स बना के रखे, अकेला इंसान खाना खाता है, वेटर भी नहीं दिखता वहां पे। यानी इतना स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, इतना स्ट्रेस है। फिर एक दिन आता है कि वो फॉरेस्ट में, वो जंगल में चला जाता है और वहां पे सब लोग जाके सुसाइड कर लेते हैं। ये ऐसे जंगल बना के रखे, लीगल करके रखे सुसाइड को, क्यों? वाई इट इज लीगल? ये लोग खुद ही कहते हैं कि तुम परमिशन ले लो, हम परमिशन देने को भी तैयार है। हमारे यहाँ तो क्राइम है सुसाइड करना, पर इनके कंट्रीज में तो लीगल है बहनों कि कर लो सुसाइड, परमिशन दे रही है गवर्नमेंट। क्यों? क्यों दे रही है गवर्नमेंट परमिशन? हाँ, क्योंकि इनकी जिंदगी में क्या है बहनों? सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे बहनों। समझ में आ रहा है? और इस्लाम क्या है बहनों? बेहतरीन मजहब, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग हमको हमको जो है ना बहनों, नेटफ्लिक्स में और क्रिकेट में और हॉकी में, फुटबॉल में, हमको हमको बहका, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को उसी धोखे में रख रहे बहन। देखो ना, एक के बाद पिक्चर आ रही है, सीरियल्स आ रहा है, सीजन चालू करते, खत्म ही नहीं होते सीजन। हाँ, उसके बाद बच्चों को भी देखो, वो गेम, एक गेम खत्म होता है दूसरा गेम, हाँ, तीसरा वो आ जाता है, क्या क्या तो उसमें। और उसके अलावा देखो, एक क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म होता है, फिर कौन सा तो कप आता है, फिर कौन सा तो कप आता है, खत्म ही होने का नाम नहीं, पूरा साल चलता रहता है। हाँ, ये मैच, वो टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट, ये सब क्या है बहनों? हमारे लोगों को गफलत में डालने के लिए ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दे वॉन्ट टू डाइवर्ट आवर अटेंशन। यस, कितना कुछ हो रहा था। अल्लाह ताला हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। जितनी जाहिलियत रहेगी ना बहनों इस्लाम और कुरान के बारे में, उतना ही हम तरक्की से दूर रहेंगे बहनों, है ना? कुरान का और हदीस का नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला देखो बहनों, वो कहता है कि वो हिदायत देता है साथ इसके, किसके? कुरान के और सुन्नतों से, है ना? अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको, जो पैरवी करता है, जो फॉलो करता है अल्लाह की खुशनुदी, जो क्या करता है बहनों? जो अल्लाह की रजा का तलबगार हो, जो अल्लाह की रजा का तलबगार हो, जो अल्लाह की रजा चाहता हो, अल्लाह को राजी करना चाहता हो, उसका शौक रखता हो, उसका तड़प रखता हो, अल्लाह उससे किताब के जरिए, अल्लाह उससे जो है हदीस के जरिए रास्ता दिखाता है। किसका रास्ता दिखाता है? सलामती का रास्ता दिखाता है, उसकी रहनुमाई करता है बहनों। वो सलामती के रास्ते पे चलेगा, वो ऐसे रास्ते पे चलेगा जहां से वो आग से बचेगा, शक से बचेगा, शुबा से बचेगा, अंधेरे से बचेगा, शिर्क से बचेगा, कुफ्र से बचेगा, बिदअत से बचेगा, गुनाहों से बचेगा, सुस्ती से बचेगा, गफलत से बचेगा, नफ्स परस्ती से बचेगा। है ना बहनों? अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि जो इंसान अल्लाह की खुशनुदी का तलबगार रहेगा, उसको हासिल करने में रहेगा, उसकी पैरवी करेगा, अल्लाह ताला उसको जाया नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसको सलामती के रास्ते पर हिदायत देगा। और वो रास्ता उसको निकालेगा कहाँ से? अंधेरों से निकाल कर उसको कहाँ लेके जाएगा? नूर की तरफ लेकर जाएगा। किसके इज़्न से? अल्लाह के इज़्न से। और वो हिदायत देता है उन्हें सीधे रास्ते की, यानी इस्लाम के रास्ते की वो क्या देगा? उनको हिदायत देगा। देखो बहनों, अल्लाह ताला जो है, यहाँ पर देखो, जब बच्चा भी रोता है ना बहनों, तो ही माँ दूध पिलाती है ना? बच्चा खेलता रहता है तो माँ उसको चुप रहेगी। बच्चा जब रोएगा, पलाएगा, कुछ इंडिकेशन करेगा, तो ही माँ दूध पिलाती है। उसी तरह अल्लाह ताला हर एक को हिदायत नहीं देता बहनों, अल्लाह ताला हर एक को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है जिसके अंदर वो तड़प देखता है, जिसके अंदर वो तलब देखता है, जिसके अंदर वो देखता है कि वो बंदा मांग रहा है, रो रहा है, वो जो है ना गिड़गिड़ा रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट है, उसके अंदर दिलचस्पी है, उसके अंदर शौक है हिदायत का। अल्लाह ताला फिर उसको क्या करेगा?
हाँ, अल्लाह ताला उसको सीधे रास्ते की हिदायत देगा, उसको अंधेरों से निकालेगा। एक अंधेरा नहीं है, हाँ, शिर्क का, कुफ्र का, बिद्दत का, गुनाहों का, हाँ, शक और शुबा का, गफलत का, नफ्स परस्ती, ख्वाहिशात की चलने का, और सुस्तीपन, हमारे अंदर कितनी सुस्तीपन है ना, वो सब अंधेरों से निकाल के अल्लाह ताला उसको कुरान के नूर, सुन्नतों के नूर की तरफ लाएगा। बहन, ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? जब मेरे और तुम्हारे अंदर ये तलब होगा कि मुझे मेरे अल्लाह को क्या करना है, राजी करना है। आई वॉन्ट द गुड प्लेजर ऑफ अल्लाह। समझ में आ रहा है? तभी अल्लाह ताला, देखो बहनों, यहाँ पर जो हम आके बैठे हैं ना हिदायत के रास्ते पर, ये ऐसे ही नहीं आए। मेरे और तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने कुछ खैर को देखा, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुछ देखा, कुछ नूर को देखा, कुछ तलब देखा, कुछ तो तड़प फिकर देखा। हाँ, हमने कहीं ना कहीं मांगे होंगे, तो ही अल्लाह ताला ने क्या हुआ, हमको लाकर यहाँ बिठाया। अब यहाँ पर लाकर बिठा तो दिया बहनों, हम अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह गुमराही की नियत से ना आए, हम किसकी नियत से आए, हिदायत की नियत से आए, हम अल्लाह की रजामंदी के साथ आए, अल्लाह को राजी करने के लिए आए। ऐसे बहुत सारे लोग अल्लाह को राजी करने नहीं आते, अपने अपनी नियत से आते कि मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग दीनदार बोले, है ना, वाहवाही हो, इज्जत हो, शोहरत हो। नहीं, मैं अल्लाह के लिए आई हूँ, अल्लाह को राजी करने के लिए आई हूँ। ऐसे बहुत से लोग कल, अब उनको औंधा मुंह जहन्नम में डाला जाएगा, है ना, आता है ना बहनों हदीसों में, बड़ा सा बड़ा मुजाहिद आएगा, जिहाद करने वाला, हाँ, बड़ा सा बड़ा सखी, बड़ा सा बड़ा आलिम और हाफिज, मगर उन लोग ने जो भी किए थे वो दुनिया के लिए करे थे, अल्लाह की रजा के लिए नहीं किए थे बहनों। वो क्या हो जाएंगे? अल्लाह ताला कहते हैं वो औंधे मुंह जाके जहन्नम में गिरेंगे बहनों। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। हमको यहाँ पर अगर आना है तो अल्लाह को राजी करना है। जो जिस नियत से यहाँ आएगा ना बहनों, उसको वो नियत पूरी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये नियत से आ रही हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे कहे कि क्या बयान करती है, बहुत बड़ी है ये, वो ही मेरे को मिलेगा बहन। समझ में आ रहा है? जो जिस नियत से यहाँ आएगा ना, अगर मैं ये नियत से आती हूँ कि मैं किसकी गलती पकड़ूं, हाँ, मैं किसी को गिराऊं, मैं दूसरों को हकीर जान के आऊं, मैं अपने आप को बड़ी समझ के आऊं, तो वही नियतें होगी बहनों, वही सवाब मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो बहनों अपनी नियतों को जो क्या करना है, टटोलना है, सही करना है कि मैं और तुम क्यों आ रहे हैं, अल्लाह की पैरवी, अल्लाह क्यों पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। हम क्या करने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह की रजामंदी के लिए। समझ में आ रहा है? जो अल्लाह की रजा का तलबगार हो, अल्लाह की रजा चाहता हो, अल्लाह की रजा का उसके अंदर शौक हो, तड़प हो, अल्लाह ताला उसको क्या करेगा, हिदायत देगा, उसके किताब के जरिए, सुन्नतों के जरिए उसको निकालेगा अंधेरों से नूर की तरफ। और इतना ही नहीं, उसको सीधे रास्ते की क्या करेगा, हिदायत देगा। आज लोग जो है लोगों के रास्ते पे चल रहे हैं बहनों। यहाँ पे अल्लाह ताला ने लोगों के रास्ते पे चलने के लिए नहीं कहा, अल्लाह ताला हमको इस्लाम के रास्ते पे चलने के लिए कहा है। आज इतने सारे मुरीद है, आज इतने सारे फॉलोवर्स किसको फॉलो कर रहे हैं, उनके पीर बाबा को फॉलो कर रहे हैं, वली अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं बहनों, उनको उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। वो पता नहीं क्या क्या तो मनाते हैं, उरूस और पता नहीं क्या क्या, मिलादे नबी, और अल्लाह को मालूम क्या क्या बिद्दत है, और गुमराह के रास्ते पे चल रहे हैं बहनों। यहाँ पे रास्ता कौन सा कहा, सीधा रास्ता, लोगों का रास्ता नहीं कहा बहनों। आज कितने सारे मुसलमान लोगों के नक्शे कदम पे चल के गलत राह पे जा रहे हैं। सिर्फ क्या देखते हैं बहनों कि ये मन्नत करने से वो पैसे वाला हो गया, ये करने से वो अमीर हो गया, हाँ, उसको ये मिल गया, वो मिल गया, बस दुनिया का फायदा देख के उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, है ना। नहीं बहनों, हमको दुनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देगा ही देगा, मगर मेन हमारा क्या हो, आखिरत हो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक जो है सब बहनों को सब बातें समझ में आई बहनों, सबको सब बातें क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी बाजी।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को कोई भी डाउट रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हम लास्ट में क्लियर करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आ जाते हैं बहनों आगे। अल्लाह ताला इतनी प्यारी प्यारी नसीहतें और वादे हमसे कर रहा है ना, हमको बता रहा है किसके नक्शे कदम पे नहीं चलना, कैसे कहना। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेशक, मैं 1 मिनट हाईलाइट कर देती हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं, तहकीक या बेशक कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह, नाउज़बिल्ला। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो लोग, कि वो लोग कहते हैं कि बेशक अल्लाह कौन है, वो ही जो है वो मसीह इब्ने मरियम है, नाउज़बिल्ला। अब अल्लाह ताला जो है वो नसरानियों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे लोग तो काफिर ही हो गए, ऐसे लोग तो कुफ्र ही हो गए बहनों, इनकार ही कर दिए। जिन लोगों ने क्या कहा कि अल्लाह ताला कौन है, वही जो है वो कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम है, नाउज़बिल्ला। तो अल्लाह ताला इनका जवाब भी देते हैं बहनों। जो लोग नाउज़बिल्ला, जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ जो दर्जा दे रहे हैं, अल्लाह ताला जो है यहाँ पे जो है वो चुप नहीं हो रहा है, नबी से कह रहा है कि जवाब दो उनको। और ऐसा करारा जवाब बहनों, देखो यहाँ पे क्या जवाब है कि कह दीजिए तो कौन जो है वो ताकत रखता है अल्लाह के खिलाफ कुछ भी, अगर इरादा करे अल्लाह ताला कि वो हलाक कर दे मसीह इब्ने मरियम को और उसकी माँ को और जो कुछ जमीन में है सब के सबको। क्या जवाब है बहनों, क्या शक्ति है। देखो, अल्लाह ताला हलाक, डिस्ट्रॉय का वर्ड बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है कि मैं उसको जान से मार दूं, इंतकाल कर दूं, है ना। ये भी तो लफ्ज होते हैं ना बहनों। पर अल्लाह ताला का गुस्सा, अल्लाह ताला का जलाल इसमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला देखो कैसे बता रहे हैं। हाँ, अगर अल्लाह ताला बता रहे कि जो लोग नाउज़बिल्ला, जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दे रहे हैं, अल्लाह ताला अगर इरादा करे कि वो हलाकी कर दे उनको भी, उनकी अम्मी कौन, मरियम अलैहिस्सलाम, और जमीन में जितने भी है सबके सबको, तो कौन है जो बचा सकता है। हाँ, कौन है जो अल्लाह के खिलाफ ताकत रख सकता है, कौन है जिसके पास वो पावर है बहनों। किसी के पास नहीं, अल्लाह ही क्या है। अल्लाह ताला वो भी कह रहा है, अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की और जो कुछ भी उसके दरमियान है। अल्लाह ही की क्या है बहनों, पूरी ताकतें, पूरा पावर, पूरी बादशाहत उसी के हाथ में है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अल्लाह के मकाम, अल्लाह का जो दर्जा है बहनों, वहां पे हम किसी को नहीं ला सकते। समझ में आ रहा है, कितने लोग आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दर्जे तक लाते। यहाँ पे ईसा इस्लाम की मिसाल क्यों ला रहे अल्लाह ताला। हाँ, क्रिश्चियंस पढ़ रहा है क्या कुरान? नहीं, हम पढ़ रहे हैं ना। हमको क्यों बताया जा रहा है बहनों, क्योंकि आज ऐसे जमात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़बिल्ला नाउज़बिल्ला अल्लाह के साथ दर्जा दे रहे हैं बहनों। सही में एक जमात है बहनों। और इतना मेरे को डर लगता है ना ये जमात से, जो नबी को इतना बड़ा दर्जा देते हैं, ऐसी शायरिया, ऐसी नाते, ऐसी इज्जत देते, खड़े हो जाते मस्जिद में सलाम दरूद भेजते हुए। हाँ, उन लोग बोलते हैं कि क्या नबी का क्या दर्जा है, हम लोग बैठ के भी दरूद सलाम नहीं भेज सकते बोलते। किबले की तरफ खड़े होके वो लोग सलाम दरूद भेजते, अजान से पहले दरूद शरीफ पढ़ते, अजान के बाद दरूद शरीफ पढ़ते। यानी वो लोगों ने अपने दीन में गुलू कर दिए, हद से आगे बढ़ गए। जो नहीं है बहनों, क्या करते, हाथ को चूमते। हाँ, नबी का नाम होता तो हाथ चूमते, ये चूमते, वो चूमते। अरे कुरान को चूमते हैं। कुरान और उंगलियां ये हाथ चूमने के लिए नहीं है। हाँ, नबी के सुन्नत पर चलने के लिए आए हैं और कुरान पर अमल करने के लिए आए हैं। वो तो नहीं करते, बस चूमते रहते हैं, सर पे रखते हैं, उसको इतनी इज्जत देते हैं कि उस पे चलते ही नहीं। नबी को भी बहनों इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं कि खड़े होके किबले की तरफ बोलते हैं हम लोग सलाम दरूद भेजना बोलते। क्यों भाई? तो बोलते हैं उनकी इज्जत इतना है कि बैठना नहीं बोलते दरूद भेजने के टाइम पे। तो फिर अत्तयात के बाद जब हम लोग दरूद इब्राहिम पढ़ते, तो वहां पे तो बैठ के पढ़ते हैं हम लोग, वहां तब क्यों नहीं खड़े हो जाते? हाँ, क्योंकि नमाज का तरीका है ना वो, वहां तो नहीं खड़े होते। मगर नमाजों के बाद खड़े होके क्या करते, दरूद और सलाम भेजते, जो कि साबित ही नहीं है। हाँ, कभी सहाबाओं ने ऐसा किया है? नहीं किया है। कहाँ कहाँ से कुछ भी लाते हैं बहनों।
اور ہم بھی کیا, وہ لوگ بھی کیا کر رہے, گلو کر رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ مقام دے رہے جو کہ نہیں ہے بہنوں. تو یہ سب سے بہت بچنا ہے. اللہ ہمارے نبی نے اپنی حیات میں منع کیے صحابہ کو کہ نہیں, میرے کو سیدنا بھی مت بولو, میرے سامنے جھکو مت, میرے سامنے ایسا مت کرو, تبھی منع کرتے تھے بہنوں, ہے نا. اور کیا کرتے بہنوں, اتنا اتنا اوور کانفیڈنٹ کہ ہم لوگ ہے نا نبی کی امتی میں سے ہے, ہماری کو سفارش ہو جائے گی اور ہم لوگ جنت چلے جائیں گے, اس لیے جو کرنا ہے کر لو. مطلب ایک دن میں ایک حال میں رہتے اور شادیوں میں ایک حالت میں آتے. کیا بولے تو نبی کی امت ہے, بچ جائیں گے بچ جائیں گے بچ جائیں گے. یہاں نبی خود اپنی بیٹی فاطمہ تعالیٰ عنہا سے کہہ رہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال میں سے جو بھی چاہیے لے لینا, مگر کل تیرے اعمال میں کوئی کمی پیشی ہوئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا. قبر میں بول رہے کہ دیکھو, یہ مت سمجھنا کہ بیٹی آ رہی ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار آ رہا ہے. قبر وہ نہیں دیکھتی, قبر کیا دیکھتی ہے, خالی اعمال دیکھتی ہے بہنوں. اسی طرح وہ اپنی پھوپھی کو, اپنے رشتہ داروں کو, سب کو بولتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مت سمجھنا کہ تم میرے رشتہ دار ہو تو تم بچ جاؤ گے, نہیں, نہیں بچو گے. تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا, تمہارے نام اعمال دیکھے گا. اور آج ہم مسلمان ایسے اوور کانفیڈنس میں جی رہے, کیا بولے تو کلمہ پڑھ لیے ہم لوگ, میاں بھائی جنت میں ہم لوگ ہی جائیں گے, بھلے ہم اچھے اعمال کرے نہ کرے. آج نمازیں غائب ہو گئی ہے بہنوں. ہاں, جنت جانے کے 2 شرطیں ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہے نا, ایمان بھی لاؤ اور اچھے اعمال بھی کرو. یا تو ایمان لانے پر ہی کیا اتنا بھروسہ, اتنا اوور کانفیڈنٹ کہ بس جنت میں ہم لوگ مسلمان ہی جائیں گے, سب کافر, سب آگ والے, ہم لوگ ہے نا جنتی, باقی سب جہنمی. اور نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے, وہ ایک اوور کانفیڈنٹ میں ہم لوگ جی رہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہلاک کر دے تو کوئی نہیں آ سکتا اس کو بچانے کے لیے, اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے. اور وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے, قدرت رکھتا ہے, وہ قادر ہے. الحمدللہ. تو یہاں پر بہنوں ہم مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے, بہت بڑے بڑے سبق ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہود اور نصرانی ہم اللہ کے کیا ہے, چہیتے ہیں, بیٹے ہیں, ہے نا. کیا کہہ رہے, وی آر دا چلڈرن آف اللہ, اور ہم کیا ہے, اس کے محبوب ہے, اس کے بلوڈ ہے نا. یہ سب ان کی کیا چوچلے باتیں, یہ سب ان کی غلط کیا ہے امیدیں, جھوٹے دعوے, ہے نا. آج ہم لوگ بھی بہنوں گھر میں ہم لوگ کیا بولتے, بھائی بہن بیٹھ کے بولتے نا, ارے میں ممی کی لاڈلی ہوں. کوئی بھائی بولے گا نہیں بابا, میں تو سب سے بڑا لاڈلا میرے ڈیڈی کا ہوں. ڈیڈی سب کو چلائیں گے, میرے کو کچھ نہیں بولتے ڈیڈی, ہے نا. میں وہی غلطی کروں گا تو بھی ڈیڈی میرے کو کچھ نہیں بولیں گے, میں گھر کا لاڈلا, وہ بولے گی نہیں میں گھر کی لاڈلی, ہے نا. بولنے میں کیا جاتا ہے نا. مگر یہاں پہ ایسے ہی جھوٹے دعوے, جھوٹے باتیں کون کر رہے تھے, یہود اور نصرانی کر رہے تھے بہنوں. کیا کہہ رہے تھے, ہم لوگ اللہ کے کیا ہے, چہیتے ہیں. بیٹا بیٹی یعنی کہ چلڈرن بولنے کا کیا مطلب ہے بہنوں, ریالٹی میں نہیں, مطلب بولنے کا مقصد کیا کہ ہم لوگ کو اللہ بہت چاہتا, اتنا چاہتا کہ کیا ضرورت ہے ہم لوگ کو کسی کو اور کو فالو کرنے کی, کیا ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی. ہاں, کیوں میں قرآن فالو کروں, کیوں میں نبی کو فالو کروں, مجھے اللہ بہت چاہتا. اور ان کو کیا لگ رہا تھا کہ اللہ کبھی پکڑ نہیں کرے گا, کبھی ہم کو جو ہے وہ آگ میں نہیں ڈالے گا. ان کا یہ کیا تھا, غلط گمان. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا جواب بھی دے رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ پوچھو ان سے کہ کیوں تم کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کے ذریعے. ہاں, اللہ تعالیٰ جو ہے اگر تم کو لگتا ہے یہودی کو, نصرانی کو, کہ تم لوگ اللہ کے بہت چہیتے ہیں, تو تم کو دنیا میں تو اسپیشل پاورز ملنا چاہیے تھا, اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے تھا. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو برابر سے کیا کرتا ہے, تمہارے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے.
है ना। क्या क्या हुआ था बहनों इनके साथ, ये जो जब सैटरडे के बारे में, सब्बत के बारे में जब इन्होंने गलती किए थे, तो अल्लाह ने इनको पिग में और जो बंदर में नहीं बदला दिया था। अगर चहीते होते तो कभी ऐसा होता नहीं होता, है ना। उसी तरह ये जो क्रिश्चियंस है, जो ये दावे कर रहे हैं, इनको भी दुनिया में ही क्या मिली, सजा मिली। इनको कोई जो है वो छोड़ के नहीं दे रहा अल्लाह ताला कि हाँ इनको बीमारी नहीं हो रही है, जलजले नहीं आ रहे, इन पे तूफान नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इन पर भी सब हो रहा है। तो अल्लाह ताला इनसे पूछ रहा है कि भाई अगर तुम वाकई में चहीते हो, वाकई में सब कुछ हो, तो तुमको दुनिया में सजा क्यों मिल रही है और आखिरत में भी क्यों मिलेगी, है ना। तुमको जो है तुम्हारे कि बार बार कुरान में अल्लाह ताला तो कह ही रहा है कि तुम्हारे ऊपर लानत है, अल्लाह का गुस्सा है, तुम्हारे बीच में दुश्मनी रहेगी, नफरत रहेगी। अल्लाह ताला बार बार तुमको तो है बातें सुना ही रहा है, तुमको धमकियां दे ही रहा है ना। तो अगर ऐसा होगा तो तुमको साथ ऐसा क्यों हो रहा है। साफ साफ कह रहा है अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला इसका जवाब भी दे रहा है बहनों, बल्कि तुम क्या हो, बशर हो। हाँ, अल्लाह ताला क्या कह रहा है बहनों कि तुम क्या हो, बशर हो, ह्यूमन बींग्स हो। उससे जो अल्लाह ने क्या किया, पैदा किया। वो बख्श देता है जिसको वो चाहता है, और वो अजाब देता है जिसको वो चाहता है। ये अल्लाह के हाथ में है। हम्म ये किसी के हाथ में नहीं है, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे सजा दे। और अल्लाह ही के लिए क्या है, बादशाहत आसमानों की और जमीन में और जो कुछ भी उसके दरमियान है, और उसी की तरफ क्या है, लौटना है। अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट आयत भी कर लेते हैं बहनों, अहले किताब के बारे में ही है कि ये जो अहले किताब है उनको कहा जा रहा है कि ए अहले किताब, बेशक आ चुके तुम्हारे पास हमारे रसूल, जो वाजे करते हैं तुम्हारे लिए, किसके पर, एक फितरत पर, यानी कि एक वक्फे पर, एक इंटरवल पर। यानी कि जो है अहले किताब, खासकर अभी किसके बारे में आ रहा है बहनों, क्रिश्चियंस के बारे में आ रहा है। ओके, ईसा अलैहिस्सलाम जो है, हाँ, जो सबसे लास्ट कौन थे बहनों, ईसा अलैहिस्सलाम, है ना। और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक वक्फा हुआ था, एक इंटरवल हुआ था। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, दावत का काम जो था वो पॉज हो गया था, टेम्पररीली रुक गया था, है ना। इंतजार हो रहा था। आता है तकरीबन जो है 550 से 600 साल तकरीबन। ओके, क्या हो गया था, एक ब्रेक हो गया था, एक इंटरवल हो गया था कि कोई नबी नहीं आ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इनसे यही बता रहे हैं कि तहकीक आ गए तुम्हारे पास हमारे रसूल, जो बयान करते हैं तुम्हारे लिए वक्फे पर, पॉज पर। किससे, रसूलों में से। ओके, यानी कि हमारे नबी पाक सल्लम जो थे, वो क्या हो गए, उनका जुहूर हो गया, वो आ गए हैं माशाल्लाह। एक ब्रेक के बाद, एक पॉज के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 550 से 600 साल तक कोई रसूल नहीं आए। उसके बाद हमारे नबी आ गए, और क्यों आए, ताकि तुम ना कहो, ताकि जब तुम जो है वो ऐसा ना बोलो कि हमारे पास कोई बशर, कोई जो है आया ही नहीं, जो ना हमको बशर जो है बशारत देने में से और ना कोई डराने वालों में से। यानी कि आ गए हमारे नबी पाक सल्लम जो है इंटरवल के बाद, पॉज के बाद आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो नहीं आते तो लोगों को क्या हो जाता, एक बहाना मिल जाता, एक एक्सक्यूज मिल जाता। लोग क्या बोलते कि हमारे पास ना कोई डराने वाला आया, और ना ही कोई जो है वो बशारत देने वाले आए। तो तहकीक आ गए तुम्हारे पास बशीर, खुशखबरी देने वाले, और नजीर, डराने वाले। और अल्लाह ताला हर चीज पर क्या है, कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला जो है, उन्होंने साफ साफ बयान कर दिया। ये ताखिर क्यों हुई थी बहनों, है ना, इसमें भी क्या है, एक हिकमत है अल्लाह की। जब कोई चीज किसी को नहीं मिलती, तो इंसान को क्या होता है बहनों, हाँ, एक इंसान को इंतजार होता है कि अरे कोई आए नहीं, कोई आए नहीं, कोई आए नहीं, है ना। तड़पता है इंसान, और हो सकता है वो चीज जब मिले तो वो कदर करे। तो ये अहले किताब को भी क्या करना चाहिए था, जब तुम्हारे पास लास्ट प्रॉफिट जो थे वो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, और इतने साल का गैप हो गया था, तो तुमको भी क्या करना, तुम इंतजार कर रहे थे, तुम तो अल्लाह से मांग रहे थे, दुआएं कर रहे थे, इतना इंतजार कर रहे थे यहूदी कि वो तो निकल कर आ गए थे, मदीना सेटल्ड हो गए थे वहां पे। हाँ, कि यहाँ पे पैदा होने वाले, हमारे किताबों में लिखा है ना, इतना इंतजार कर रहे थे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए थे, तो इनको तो क्या करना था, खुश हो जाना चाहिए था।
हाँ, शुक्र करना चाहिए था, कदर करना चाहिए था, वेलकम करना चाहिए था, उनकी मदद करना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था, उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उन पर ईमान लाना था। मगर उल्टा इन्होंने क्या किए? हाँ, उल्टा ये लोगों ने क्या किए बहनों? उसी नबी का इनकार कर दिए जिनके बारे में ये सब कुछ जानते थे। अपनी औलादों को भी इतना नहीं पहचानते थे जितना ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते थे बहनों। तो अल्लाह ताला मुझे और तुमको भी यही बता रहा है कि हमारे पास भी आ गए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो क्या कर रहे हैं? खुशखबरी देने वाले, डराने वाले। खुशखबरी किसके लिए बहनों? जो भी नबी की इत्तबा करेगा, नबी के नक्शे कदम पर चलेगा, उसके लिए खुशखबरी है। और जो भी नबी की बताए हुए बातों पर नहीं चलेगा, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलेगा, उनको अपना रोल मॉडल नहीं बनाएगा, हाँ, तो वो उसके लिए क्या है? वॉर्नर, उसके लिए डराने वाले। और अल्लाह ताला क्या है बहनों? हर चीज पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं तक हमारी आयत थी, आयत नंबर 14 से लेके आयत नंबर 19 तक। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक दे बहनों। आज की जो आयतें हैं सब हमारे लिए बहनों। हम ये ना समझे अहले किताब यहूदी नस्रानी मतलब हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए इसलिए है बहनों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस पाक का मफहूम है कि तुम लोग उनको ही फॉलो करोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे। जैसे यहूद नसरानी अगर कोई खड्डे में घुस गए, कोई सुराग में घुस गए, तो तुम लोग भी वो सुराग के अंदर घुस जाओगे। तुम लोग उसकी उन लोग की इतनी पैरवी करोगे। आज ये उम्मत पैरवी नहीं कर रही बहनों। हमारे खाने, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कपड़े, हमारा लाइफस्टाइल सब इनके जैसे हो रहा है। नहीं हो रहा है बहनों। खाना पीना, घूमना फिरना, दुनिया में जीना, दुनिया का कंपटीशन, दुनिया का लालच, दुनिया की हिर्स, दुनिया के पीछे पड़े हैं बहनों। आखिरत को हम लोग भूल ही गए, है ना? आखिरत याद ही नहीं है बहनों। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। और हमको इनके नक्शे कदम पर नहीं चलना है बहनों, है ना? ये लोग जब उन उन नसीहतों को भूल गए जो नसीहत दिए गए थे, इनके साथ क्या हो गया? अल्लाह की लानत, इनका दिल सख्त हो गया, दुश्मनी नफरतें आ गई। हाँ, ये सब हमको नहीं करना है बहनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमको वो नसीहतें याद रखना है जो अल्लाह ने हमको दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमको क्या करना है बहनों? जो भी कुरान का इल्म है उस पर चलना है, नबी पाक सल्लम की सुन्नत पे चलना है, इनकी जैसे नहीं होना है बहनों। इनके नक्शे कदम पर नहीं चलना है, वरना अल्लाह की लानत हम पर होगी। और ये झूठे दावे और बातें कि मैं तो उम्मती हूँ, जन्नत चले जाऊंगी, मैं सिफारिश हो जाएगी, हाँ, ये सब दावे बातें उम्मीदें हमारे साथ नहीं हो। हम कैसे हो बहनों? हम अच्छे अच्छे अमाल करें, अल्लाह की रजामंदी के साथ करें, अल्लाह की को राजी करने के लिए करें, खुशनुदी के लिए करें, तो अल्लाह ताला भी हमको क्या करेगा? सीधे रास्ते की रहनुमाई करेगा, हमको अंधेरों से निकालेगा नूर की तरफ, और हमको सलामती वाले रास्ते पर चलाएगा बहनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यही रास्ता सलामती का रास्ता है ना बहनों? हाँ, कौन सा रास्ता है बहनों? कुरान और सुन्नत का रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह। और कल भी हमारी आयतें होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। दुआ पढ़ लेते हैं बहनों। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह हमको मुत्तकी और परहेजगार बना। या अल्लाह हमको कुरान और हदीसों पे चलने वाला बना। या अल्लाह अहले किताब के जो भी सिफतें हैं, यहूद नसरानी की जो भी सिफतें हैं, हमारे अंदर से निकाल दे। या अल्लाह हमारी हिफाजत कर उनके हर प्लॉटिंग से, हर मकर और फरेब से। या अल्लाह इन हम मुसलमानों की, हमारी नस्लों की हिफाजत
حفاظت کر. ہم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، سنتوں پر، سادگی پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہم کو ہمارے قرآن کو لے کے چلنے والا بنا دے، اس کے پیغام کو پھیلانے والا بنا دے. یا اللہ جتنے بھی لوگ ترکی اور سیریا میں جو بھی یا اللہ جس حالت میں بھی ہے، ان کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور کر دے، ان کی حفاظت کر. اور جتنے بھی لوگ جہاں کہیں بھی لوگ ہیں بہنوں، اللہ ان سب کی اللہ تو حفاظت کر، عذاب سے بچا یا اللہ. یا اللہ تیرے غصے سے، تیرے لعنت سے، تیرے غضب سے یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت کر. یا اللہ تو ہم سے راضی رہنا، یا اللہ تو کبھی ہم سے ناراض مت ہونا، یا اللہ تو کبھی ہم سے غصے میں مت آنا. یا اللہ اگر تو ہم سے غصے میں آ گیا تو ہم تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. یا اللہ تو بہت بڑا ہے، یا اللہ ہم کچھ نہیں ہے، یا اللہ ہم کچھ نہیں ہے، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. تیرا غصہ، تیرا غضب، تیری نفرت، تیرا بغض کبھی ہم نہ دیکھے، تیرا جلال بھی ہم نہ دیکھے. تو رحیم ہے، تو کریم آقا ہے. ہم ہمیشہ تیری رحمت میں ہمیں ڈھانپے رکھنا ہمیشہ. یا اللہ تو ہم پر مہربان رہنا. یا اللہ کبھی کبھی ہم تیرا غصہ، غضب، نفرت نہ دیکھے. تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا. آمین آمین آمین. یا اللہ ہم سے قبول کر لے، آسانی کر. یا اللہ ہم سب کو صحت دے، تندرستی دے، حیاتی دے. اور ہم سب کو اللہ تو رمضان تک پہنچا دے، خیر اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.